Okay. Okay, so we are going to study today quadratic equations, right? So what is a quadratic equation? Any equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as a quadratic equation where a is not equal to 0. Now, why should a not be equal to 0? Yeah, it will become a linear equation, and therefore any equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as a quadratic equation, right? So it's a second degree equation. So what are the ways and means of solving this equation? There are two ways of solving this equation. One of the ways is splitting middle term, and the second way is formula method. So let us just take an example. Let us say I have x square minus 5x plus 6 is equal to 0, and I want to solve this. So the best way to solve is, you split the middle term. Now please understand this equation, and let us say you were to write this equation. Is there any difference between first equation and second equation? No. But when I'm saying middle term, why we are not saying 6, why we are only saying 5x? Because the standard nomenclature is that highest degree variable will be written the first and then subsequently decreasing order, right? So when I'm saying middle term, that is what I mean. ठीक है, you can't argue कि सर ये भी तो correct है तो इसका middle term तो ये बनेगा तो हम क्या लेंगे, हमेशा यही लेना है. Now we need to split the middle term such that the sum of these two terms should be equal to this term, which is minus 5x, and the product of these two terms should be equal to the product of the first and the last term. यानी मुझे 5x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इनका सम minus 5x आ जाए, प्रोडक्ट plus 6x square आ जाए. So that splitting would happen something like this. It can be taken as minus 2x, minus 3x, and minus 6 is equal to 0. Now this is where the application of mind is going to happen. There is nothing रूल पर से कि हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा. वो हमें ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा कि भी कौन सी दो वैल्यूज का सम ये है और कौन सी दो वैल्यू का प्रोडक्ट फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म है. तो इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं तो x माइनस 2 बनेगा. इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस 2 बनेगा. जब भी हम इस चीज को ऐसा स्प्लिट करेंगे देन इट इज फॉर श्योर कि ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन बनेगा जिसमें से कि हम कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकते हैं. इन दोनों में से हम x माइनस 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 3. यानी जब हम x को 2 पुट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा. सो देयर आर टू solutions to this quadratic equation. So we are having two solutions to this quadratic equation. So these are also known as roots of the equation. अगर कोई पूछे what are the roots of the equation, we would say 2 and 3. Solutions of the equation, we would say 2 and 3. Now, what do you really mean when you say this? These are roots of the equation. The real meaning and the essence is something like this. For example, this is my graph, and this is, if you draw a graph of this one, this will become a parabolic function. ये कुछ तो इस टाइप का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कुछ तो ऐसा बनना चाहिए. ठीक है, अब ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा, राइट? ये जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है वो 2 and 3 है. ये सॉल्यूशन है. समझ में आ रहा है? ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट रहा है. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज हैविंग टू सॉल्यूशंस. नाउ सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट अस से you have some quadratic equation like this. It is just touching the graph and moving up. Let us say this point is 4, right? So what is this kind of equation? It would be something like, let us say this equation is something like x square, let us say, minus 8x plus 16 is equal to 0. Now, if you see, this is nothing but x minus 4 ka expansion. It means I should have two solutions, but the two solution here is x is equal to 4 and x is equal to 4. Both are 4. That means this parabolic function is touching the graph at x-axis at only one point. So these two solutions that we are supposed to have are equal. That is the basic meaning. So when you have a graph quadratic equation, either you are having two distinct solutions or you are having only one solution. You may have a graph which is not touching at all, which is just moving up. So that means it is not having any real solution. If it is not touching x-axis, we will say it is not having any real solution. We can say it is only having imaginary solution. इसका ये मतलब होता है. समझ में आ रहा है? रियल सॉल्यूशन नहीं है, इमेजिनरी सॉल्यूशन है. ये बात समझ में आती है? हम थोड़ी देर में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे समझा रहा हूं. मान लेते हैं मेरा ग्राफ ऐसा है जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये वाली मिनिमम वैल्यू होगी इस पॉइंट पे. जब x की वैल्यू ये होगी 2.5 के करीब, तो y की वैल्यू जो भी -2 -3 होगी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ. तो इस ग्राफ की क्या मिनिमम निकलेगी या मैक्सिमम निकलेगी? मिनिमम निकलेगी, क्योंकि जब x की वैल्यू यहाँ आएगी तो y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यहाँ आएगी, तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी y की वैल्यू बढ़ती जाएगी. सो जिसका मुंह ऊपर खुला है उसका हम क्या निकालते हैं? मिनिमा. उसका हम क्या निकालते हैं? मिनिमा.
लेकिन मान लेते हैं आपने कहा सर ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता था, उस केस में ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमा को। अब जनरली क्या होता है, ये मुंह ऊपर खुलेगा या नीचे, ये हम कोफिशिएंट से भी बता सकते हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर वो पॉजिटिव होता है देन वी नो दैट द ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड्स, इसका मतलब फंक्शन का क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। व्हेन a इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? ग्राफ का जो मुंह है वो नीचे की तरफ खुलेगा, यानी फंक्शन का क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। दैट इज हाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स मैं इसको डिफरेंशिएशन से भी एक बार करके दिखा दूंगा। फर्स्ट डिफरेंशियल, सेकंड डिफरेंशियल। सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव होता है तो मिनिमा होता है, सेकंड डिफरेंशियल नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा होता है। ऐसा हमने 11th 12th में पढ़ा है। ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने, कई लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो मैं दूसरे मेथड से भी उसको बताऊंगा, बट जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए ये बात कॉमन होगी कि भाई सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव होता है तो मिनिमा होता है, फर्स्ट डिफरेंशियल से हमें टेंजेंट निकल जाता है dy by dx। यहां तक बात समझ में आती है? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? हाँ, क्या हुआ? अच्छा, स्लो बोलूं? ओके, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ तो यहां तक समझ में आया बाय द वे? मतलब तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है मैं वो बता रहा हूँ कि बेसिकली जैसे में लीनियर इक्वेशन एक लाइन थी, सीधी लाइन थी, उस पे पॉइंट्स के सॉल्यूशन मेरे आंसर होते थे। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोलिक ग्राफ होता है जो एक्स एक्सिस पे कट करता है, जिस पॉइंट पे कट करता है हम उसको सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि दो ही पॉइंट पे कट करेगा। अगर दो पॉइंट पे कट करेगा तो टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन बोलेंगे, एक पॉइंट पे कट करेगा तो हम टू सॉल्यूशंस बोलेंगे, लेकिन दो सॉल्यूशंस आर इक्वल, उसको बोलेंगे इक्वल सॉल्यूशंस, राइट। इन सॉल्यूशंस को हम रूट्स के नाम से भी जानते हैं। कोई ये बोलेगा व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, व्हिच आल्सो मींस व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। somebody may say what are the zeros of the equation, which once again means what is the solution or the roots of the equation. That is the basic meaning. Then I also told you मुंह ऊपर खुला इसका मतलब मिनिमा आएगा, मुंह नीचे खुला इसका मतलब मैक्सिमा आएगा। फिलहाल यहां तक समझ में आती बात। ये सॉल्व करने का तरीका है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, राइट। बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू सॉल्व इन दिस मेथड, बिकॉज इस केस में मान लो नेचुरल नंबर है या इंटीजर है तो हम स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आती हैं तो स्प्लिट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सोच नहीं पाते हैं कि भाई क्या फ्रैक्शन लिया जाए कि ये ऐसा कंडीशन बने, सम बीच का आ जाए और प्रोडक्ट पर्सनल लास्ट का आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मेथड होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। वो क्या मेथड है हम एक बार वो देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारी यही इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो दिस प्लस माइनस मींस एक बार पॉजिटिव लेना एक बार नेगेटिव लेना, यानी दो रूट्स आएंगे, राइट। So this is the direct way of finding out an answer. So for example, if I were to have my equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0, now it is necessary to understand what is a, b, c. A is always the coefficient of x square, b is always the coefficient of x, and c is always considered to be the constant value. कोई फांसी नहीं चढ़ा देगा हमें अगर हम a b c चेंज कर देंगे, but that is a standard nomenclature कि अगर कोई b square minus 4ac बोलेगा तो हमें समझ में आ रहा है कि b is nothing but the coefficient of x, a is nothing but the coefficient of x square, and c is nothing but the constant. So how do we really get the answer? माइनस b, माइनस तो फॉर्मूले का है, b की वैल्यू क्या है? -5। क्योंकि अगर हम देखें तो प्लस b होना चाहिए, तो प्लस करके -5 किया जा सकता है। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर इज -5 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट वैल्यू, this divided by 2 times a. So what do you have? You have 5 plus minus under root of 25 minus 24 divided by 2. So you have 5 plus minus 1 divided by 2. So one case you will have 5 plus 1 by 2 and you will have 5 minus 1 by 2. So that is 6 by 2 which is 3 and 4 by 2 which is 2. So my answer is 3 and 2. That is what we were able to find out. समझ में आ रहा है? हाँ बता दीपक, कहाँ पंगा है? हाँ 20, तो अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 24 1 होता है, तो 5, हाँ अंडर रूट 1, तो रूट 1 की वैल्यू 1 होती है ना, रूट 1 इज ऑलवेज 1, तो ये प्लस माइनस 1, ठीक है। नाउ दिस हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। दिस वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर है, which is b square minus 4ac, this is known as discriminant. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं discriminant. समझ में आ रहा है? This value is nothing but discriminant. Discriminant
वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेशन से, यानी जिसकी वजह से कोई चीज अलग हो जाती है उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो दिस वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac विल डिटरमाइन व्हाट इज द नेचर ऑफ माई रूट्स। ये क्या डिटरमाइन करेगा? नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर ऑफ द रूट्स का क्या मतलब है? रूट्स यानी जैसे 3 2, तो नेचर का क्या मतलब होता है? नेचर का मतलब है ये रियल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, इररेशनल है, रैशनल है। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी सॉल्यूशन की, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम उसको नेचर बोलते हैं उसका। ये नेचर डी से डिपेंडेंट है। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी के नाम से भी जानते हैं। दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज डी। नाउ इफ माय d which is known as b square minus 4ac, d which is known as b square minus 4ac, if d is greater than 0 and perfect square, मतलब जैसे टोपीधारी नंबर है, ये ग्रेटर देन 0 है, यानी अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो हम ये कह सकते हैं द रूट्स आर रियल। इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि वो असली रूट्स हैं। चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, रियल है, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं डिस्टिंक्ट है। चूंकि अंडर रूट खत्म हो गया तो आई कैन से रैशनल है। ठीक है, रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। लेकिन अगर d 0 से बड़ा है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर समझते हो क्या होता है? जैसे 1 वाज परफेक्ट स्क्वायर तो अंडर रूट खत्म हो गया, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे 2 आ जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता, एग्जांपल के तौर पे 2, तो ये तो नहीं होता ना। उस केस में हम क्या कह सकते थे? रूट्स क्या है? रियल तो है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अंडर रूट पॉजिटिव आ गया, टोपी के अंदर पॉजिटिव आ गया, रियल है। डिस्टिंक्ट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन इररेशनल होगा। हाँ बेटा, जैसे 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हम इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर। 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका अंडर रूट करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। तो अंडर रूट 5 यानी टोपी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो रैशनल। जो इररेशनल होता है दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट इज कॉन्जुगेट पेयर। वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर समझते हो क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे 2 + √3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - √3। यानी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो रैशनल नंबर होना चाहिए, उसको कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो मान लेते हैं मैंने कहा √3 - 4, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या है? √3 + 4, जो कि गलत है, क्योंकि इसका जो तरीका होता है पहले रियल नंबर लिखा जाता है फिर इररेशनल। तो ये बनेगा -4 + √3। अब जब तुम साइन चेंज करोगे तो -4 - √3 बनेगा। ये इसका कलेक्ट कॉन्जुगेट पेयर है, ना कि वो वाला पेयर। पेयर जोड़ा, समझा क्या कह रहा हूं? ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है। इस क्वेश्चन का भी आंसर यही है। -4 चेंज नहीं होगा, ये रूट वाला चेंज होगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? कॉन्जुगेट पेयर। अब इसका इसका फायदा क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है 75x² - 847x + 936 = 0। इसका एक रूट है 23 + √37। व्हाट इज द अदर रूट? क्या सॉल्व करने की जरूरत है? बताइए हमें क्यों? क्योंकि इररेशनल रूट है तो कॉन्जुगेट होगा ही होगा, तो अगले वाला माइनस हो जाएगा, बिना सॉल्व के निकल सकता है। इसका ये मतलब है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, उसी तरीके से अगर d = 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है? b² - 4ac = 0 हो जाए, तो अगर ये =0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो b ± 0 करो, b + 0 करोगे या b - 0 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो इसका मतलब है ये कंडीशन किसकी है? रूट्स आर रियल। रूट्स रियल है क्योंकि अंडर रूट नहीं है। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इक्वल, दे आर रियल एंड इक्वल, यही कह सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते हैं। d = 0 के केस में रूट्स आर रियल एंड
इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7k प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। What should be the value of k such that the roots are equal? What should be the value of k such that the roots are equal? तो roots are equal मतलब discriminant 0, यानी b square minus 4ac 0। इसका मतलब b square का मतलब है माइनस 7k होल का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 इंटू 12। तो इसका मतलब है k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 12 बाई 49। तो k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 12 बाई 49। तो ये आ जाएगा 2 और 36 आ जाएगा ना। 12 4 जा 48 नहीं आएगा ना नीचे से। हाँ 4 आ जाएंगे इंटू 2 रूट 3। तो मेरा आंसर आ जाएगा k की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4 रूट 3 बाई। ऐसे क्वेश्चन, अब वो k यहां पर भी हो सकता था, यहां कहीं भी हो सकता था। समझ में आ रहा है? ये कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर d लेस देन 0 हो जाता, इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव होगा। अब ध्यान से देखो मेरे रूट्स क्या बनेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4c टोपियर धरिए। अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ गया तो रूट कैसा हो गया? इमेजिनरी हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, क्योंकि एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होगा? कॉन्जुगेट पेयर। यानी मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है 79 एक्स स्क्वायर माइनस 84 एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड वन ऑफ द रूट्स इज लेट अस से 28 प्लस 5 आयोटा। व्हाट इज द अदर रूट? क्या सॉल्व करने की जरूरत है? क्यों नहीं है? सो व्हाट इज एन आयोटा, पहले ये समझ लेते हैं। तो आयोटा क्या है ये समझ लेते हैं। आयोटा मैंने जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तब बताया होगा कि एक इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे कि हम 4 का 4 है, अंडर रूट करते हैं तो 2 लिख लेते हैं। ऐसे अगर अंडर रूट ऑफ -4 करना है तो हमारे पास कुछ सिस्टम नहीं था इसके लिए, तो हमने इसको क्या किया, 2 इमेजिनरी इंटू 2 इमेजिनरी, ताकि 2 इंटू 2 तो 4 हो जाए और i का स्क्वायर -1 हो जाए। तो हमने क्या मान लिया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। तो यहां से i की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 आ गई। आई क्यूब की वैल्यू -i आ गई, बिकॉज हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा, इसका स्क्वायर किया इसका स्क्वायर किया, तो i की पावर 4 1 आ गया। तो ये एक आयोटा मैंने समझाया हुआ था जब मैं आपको नंबर सिस्टम्स पढ़ा रहा था, आयोटा का क्या मतलब होता है। इट्स एन इमेजिनरी नंबर। तो वंस अगेन इसकी एप्लीकेशन क्या, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, डिस्टिंक्ट हैं और कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो हमें एक रिजल्ट इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे बनाए जा सकते हैं। सॉल्यूशन निकालने का तरीका -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। उसका जो एप्लीकेशन है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है, और उस केस में भी 2 केस हो गए, परफेक्ट स्क्वायर होना और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इट इज रियल, डिस्टिंक्ट, इरैशनल एंड कॉन्जुगेट पेयर। अगर इक्वल टू 0 है तो सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट हम कह सकते हैं। लेस देन 0 है तो इमेजिनरी, डिस्टिंक्ट एंड कॉन्जुगेट पेयर है। तो ये रिजल्ट्स हमें याद होने चाहिए। यहां तक बात समझ में आती है सभी को? नो प्रॉब्लम। और इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। हाँ वो तो रूट्स हो गए ना, या तो रूट एक मान लो एक 3 आ गया, एक -3 आ गया, तो 3 और -3 तो रियल है, डिस्टिंक्ट है और रैशनल है, वो तो आ ही सकता है। आप ये नहीं कह सकते b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा, 3 ही तो हो सकता, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। उस तीनों का हमने कंडीशन देख ली। ठीक है, जो रिजल्ट है वो तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इमेजिनरी, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट इन्हीं तीनों में से होगा, या तो 0 से बड़ा, 0 से छोटा या 0 के बराबर। ठीक नो। अब इसके पहले अभी हमने एक चीज और सीखी थी कि मान लो मेरे पास एक इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने इसको स्प्लिट किया x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, और फिर हमने इसका एक इक्वेशन बनाया और हमें पता चला कि जो मेरी इक्वेशन है वो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन है। अब मान लेते हैं, तो इस यहां से मेरे को रूट्स मिल गए, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3।
क्वेश्चन ये है कि मान लो मुझे ये पता है कि ये मेरी एक इक्वेशन है जिसके रूट्स 2 और 3 हैं, तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी। मतलब रूट्स पता है, इक्वेशन अभी हमने क्या पता, इक्वेशन पता थी, रूट्स निकालना था। अब हमारे पास क्या है, रूट्स हैं, इक्वेशन बनानी है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरा एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। एक मिनट, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें एक इक्वेशन पता है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। हम देखना चाहते हैं कि क्या हम इसके इक्वेशन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। आप ये देखिए, जो लास्ट स्टेप था वो कैसे आया था, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तभी अपन x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 3 लिखा था। यानी अगर कोई इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो लास्ट स्टेप x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा रहा होगा, तभी आपने x इज इक्वल टू अल्फा x इज इक्वल टू बीटा किया होगा। यही बात है ना। लेकिन ये स्टेप कहां से आया होगा, ये इसका पिछले वाला स्टेप है। तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा रहा होगा, जिसमें से आपने इन दोनों में से x कॉमन निकाला होगा, इन दोनों में से बीटा कॉमन निकाला होगा, और तो ये इक्वेशन बनाई होगी। बट ये कहां से आया होगा, ये कुछ ऐसा रहा होगा कि x कॉमन रहा होगा, ये अल्फा प्लस बीटा रहा होगा, ये अल्फा बीटा होगा। ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन रही होगी, जिसको आपने ऐसे किया होगा, जिसको आपने स्प्लिट करके ये किया होगा, जिससे आपकी इक्वेशन बनी रही होगी, रिवर्स ऑर्डर। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इसको बोल सकते हैं सम ऑफ द रूट्स, हाँ या ना। अल्फा इंटू बीटा को क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या नहीं से इक्वेशन बनेगी। तो इसका मतलब है अगर मुझे रूट्स के बारे में पता है तो ये मेरा इक्वेशन बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज एस, व्हाट इज पी। नाउ फॉर एग्जांपल ये मेरे रूट्स हैं, अपन को डायरेक्ट इक्वेशन बनानी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द रूट्स यानी 2 प्लस 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी 2 इंटू 3, यही बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ये मेरे रूट बन गए। यहाँ से देखो ये इक्वेशन, हाँ सॉरी माइनस, बता क्या नहीं आया, पूरा ही नहीं आया। देख, अगर मेरे पास सॉल्यूशन है और मुझे इक्वेशन चाहिए तो मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूंगा। मैंने मान लिया अल्फा और बीटा मेरा सॉल्यूशन है, तो लास्ट स्टेप रहा होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। बाकी मत देख, मान ले मैंने कहा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू बता, तो क्या बताएगा, अल्फा और बीटा बताएगा। अब उसको रिवर्स लिख ले, वो क्या, एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर अंदर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा एक्स माइनस बीटा, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बनेगा। उसमें से अगर आप सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकाल ले, ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा और कोने में बचेगा अल्फा इंटू बीटा। उसको मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक, ये रिजल्ट है अपना। अगर हमें रूट्स पता है तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू। अभी वो आगे आएगा। अब लेकिन ये जो अल्फा बीटा रूट्स थे हमने किस इक्वेशन के माने थे, हमने तो इस इक्वेशन के माने थे। यानी ये इक्वेशन कौन सी वाली, ये ग्रीन वाली जो इक्वेशन है और येलो वाली जो इक्वेशन है वो सेम होनी चाहिए। अब अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बी की वैल्यू माइनस एस होनी चाहिए और सी की वैल्यू पी होनी चाहिए। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको याद है लीनियर इक्वेशन में मैंने इक्वेशन कराया था x प्लस 2y इज इक्वल प्लस 19 इज इक्वल टू 0, और मैंने कहा था 19x प्लस 38y प्लस 361 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था सॉल्व करो। अब आपने इसको 19 से मल्टीप्लाई जब किया था तो सब सेम आ गया था। इसका क्या मतलब है, नीचे वाली इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन सेम है, बट क्या 19 इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन क्या हम कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर मैं इसको LHS में 19 से डिवाइड कर दूं, इस सारे सौदे को 19 से डिवाइड कर दूं और इसको भी 19 से डिवाइड कर दूं तो काम चल जाएगा। आ रही बात समझ में, बिकॉज दे आर वन एंड द सेम लाइन। रियल डिफरेंस क्या, एक लाइन है वो थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो गई है बस। तो चूंकि दोनों लाइन सेम है, अगर मैंने एक कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करी तो बचे हुए कोफिशिएंट अपने आप इक्वल हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट a है,
मैं चाहता हूं एक कोफिशिएंट इसको इक्वल कर दूं तो बचे हुए कोफिशिएंट अपने आप इक्वल हो जाएंगे। सो लेट मी डिवाइड LHS एंड RHS बाई A। मैं A से क्यों कर रहा हूं, आप कह रहे हो B क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि A हमने कंसिडर किया था A इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा AX स्क्वायर अपॉन A प्लस B बाई AX प्लस C बाई A इज इक्वल टू 0 बनेगा। A से A कटेगा। अब इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है वो यहां पे इस x के कोफिशिएंट के बराबर होनी चाहिए। x हो गया, बचा क्या माइनस s, और यहां क्या बचा b बाई ए। इसका मतलब है माइनस s जो है वो b बाई ए के बराबर है, और वैसे ये जो है ये p था, तो p किसके बराबर है c बाई, यानी जब माइनस करूंगा तो s इज इक्वल टू माइनस b बाई ए एंड p इज इक्वल टू c बाई। व्हाट वाज s, सम ऑफ द रूट्स, तो ये रिजल्ट होता है आपका सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c बाई। अब इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे इसका सम निकालना है तो क्या बनेगा माइनस b यानी ये माइनस 5, a यानी ये, तो कितना बन गया 5। प्रोडक्ट निकालना है तो क्या बनेगा c बाई ए, c क्या है 6 बाई 1, आंसर क्या आ गया 6। अब आपको ध्यान है इसके रूट्स 2 3 थे, इसका जोड़ोगे तो 5 आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो 6 आएगा। तो आपको क्या याद रखना है, सम ऑफ द रूट इज गिवन एज माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज गिवन एज c बाई ए। ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, ऐसा क्यों है, ऐसा किताब में सिर्फ फॉर्मूला दे रखा है, मैं समझा रहा था कि भाई ये कहां से आ रहा है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, कोई इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। वो करेगा क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ डिग्री इक्वेशन, वहां हमें फंसाएगा। उसका क्या पेच है, उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसको इससे कैसे कनेक्ट करेंगे, ये बता देता हूं आपको। देखिए, जब हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके दो रूट्स बने अल्फा और बीटा। हमें पता चला अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस b बाई ए है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c बाई। लेट अस से वी आर हैविंग थर्ड डिग्री इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा। ठीक, अगर मैं इन तीनों रूट्स का सम निकालता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बनेगा माइनस b बाई ए, टेकन वन एट ए टाइम, एक एक रूट्स ले रहे हैं। अब हम दो रूट्स लेते हैं, यानी अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू c बाई ए। समझ में आ रहा है, यानी कांस्टेंट बाई ए। अब तीनों रूट्स ले लें, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। अभी मैं पैटर्न समझाऊंगा, एक बार बता रहा हूं। अगर थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। अगर मेरे पास फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, मान लेते हैं ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई, तो कितने रूट्स बनेंगे 4 रूट्स बनेंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक, अब इन चारों का डेल्टा, अगर इनका सम निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, देखो ये बनेगा पहले ये वाला डिवाइडेड बाय हाईएस्ट माइनस बी बाई। अब अपन लेंगे दो रूट, यानी कि कौन कौन से, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। दो रूट्स हो गए, और कुछ बचा तो नहीं। अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, पहले ये तो ना, अब ये नेक्स्ट वाली वैल्यू प्लस, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलेगा, प्लस c बाई। फिर तीन रूट्स लेते हैं, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस 4c1, 4 बनना चाहिए ना, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा, उसके बाद अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, ये क्या बनेगा माइनस डी बाई। फिर हम चारों रूट्स ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये क्या बनेगा प्लस ई बाई। कोई पैटर्न समझ में आ रहा है, एक तो पहले माइनस प्लस चल रहा है। सिंगल रूट लेंगे,
ये वाला और ये वाला, दो दो रूट लेंगे, नेक्स्ट वाला, थर्ड रूट लेंगे, ये वाला, फोर्थ रूट लेंगे। अगर फिफ्थ डिग्री होता तो सारे रूट्स का जो सम होता x की पावर 4 का कोफिशिएंट और x की पावर 5 का कोफिशिएंट का रेशियो होता। लिख दूं एक बार या समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो मुझे इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बनने वाली है वो कौन सी बनने वाली है? क्या हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं रिपीट तो कर देता हूँ, तुम्हें नहीं आता तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं नहीं करता हूँ, बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो हम पांचों रूट्स लेते हैं इसके, ठीक है, तो क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस कितना हो गया? ओमेगा। इसका सम लेना है, कौन कौन सा ले बताओ? ये वाला नेक्स्ट और फर्स्ट वाला और माइनस बी बाई। अब दो दो रूट्स लेंगे तो फिर कौन सा लेंगे? सी बाई ए। तीन तीन रूट लेंगे माइनस डी बाई ए। चार रूट लेंगे ई बाई, और पांचों लेंगे तो माइनस एफ बाई ए। सबसे ज्यादा एग्जाम में एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है और एक सारे होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इंटू ओमेगा माइनस एफ बाई ए। अब क्वेश्चन ये है कि माइनस कहाँ लगेगा, प्लस कहाँ लगेगा, इसका मैं ट्रिक बता देता हूं। देखिए, जब आप ऑड नंबर ऑफ रूट्स लेते हो, यानी या तो एक एक ले लो या तीन तीन ले लो या पांच पांच ले लो, तो सामने क्या लगेगा? माइनस। इवन मान लो दो दो रूट्स लोगे, चार चार रूट लोगे, छह छह रूट लोगे, तो क्या लगेगा? प्लस। ये ध्यान रखना है। टेक्निकली स्पीकिंग ये -1 की पावर n होता है, मैं इतना बता नहीं रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो। -1 की पावर n होता है, n इज नंबर ऑफ रूट्स टेकन एट ए टाइम। जब आप एक एक रूट का सम ले रहे हो तो ऑड नंबर है यानी माइनस, जब आप दो दो रूट का सम ले रहे हैं यानी इवन नंबर यानी प्लस, तीन तीन रूट ले रहे हैं जैसे कि ये तीन तीन रूट है, देख इसको तीन तीन रूट बोलता हूं, तो माइनस। चारों रूट एक ही बार आएगा प्लस। ऊपर आप ध्यान से देखो, एक एक रूट तो माइनस, दो दो रूट तो प्लस, तीनों रूट तो माइनस। पांच में भी एक एक रूट लेंगे तो माइनस, पांचों रूट लेंगे तो भी माइनस, अगर तीन तीन रूट लेता तो भी माइनस, दो रूट लेता तो प्लस, चार रूट लेता तो प्लस। ये इसका मेथड है। See, there is no systematic method of finding out any roots third degree onwards. थर्ड डिग्री ऑनवर्ड्स। थर्ड डिग्री निकालने के लिए पहला रूट ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा, वो ट्रायल एंड एरर के बाद वो x माइनस अल्फा की फॉर्मेट में आ गया, फिर क्यूबिक इक्वेशन को x माइनस 1 को फॉर्मेट से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन ट्रायल एंड एरर से, फिर उसको डिवाइड करोगे, फिर क्यूबिक इक्वेशन, फिर क्यूबिक में से ट्रायल एंड एरर करोगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर सॉल्व होएगा। शायद इसमें एक क्वेश्चन है, मैं वही वाला करवा देता हूं जस्ट इन केस। चलो मेरे को ना अभी थोड़ी दो तीन चीजें और पढ़ाता हूँ, मैं फिर ये करवा दूंगा एक क्वेश्चन।
ठीक है, थर्ड डिग्री इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, विल डू इट। उसके पहले मुझे आपको ना रिमाइंडर थ्योरम और डिवाइड करना सिखाना पड़ेगा, फिर आ जाएगा। ठीक, फिलहाल तो ये कोफिशिएंट्स हैं हायर डिग्री इक्वेशन के। नाउ टेक्निकली स्पीकिंग you have 5 variables and 5 equations, so you should be able to solve it, but for all practical purposes नहीं होएगा, तो ये ट्रायल एंड एरर से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, ये ऐसा होता है। अच्छा, ये मुझे उसको देख के लग रहा है जैसे अच्छा प्लस नहीं आएगा, ये वो उसको क्या बोलते हैं जो चीनी बनाते हैं जिसको, मोमोज टाइप है ना ये कलर इसका, ऐसे ही होते हैं। इसको देख के इमेजिनेशन ऐसी हो रही है मोमोज में, उसमें चोंच बना रखी होती है, काट दो ऊपर से। ठीक है, किसको, यहां तक क्लियर है? इस पे एक कैट में क्वेश्चन आया हुआ है, इस नॉलेज से सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जुगाड़ी बैठेगा। बताता हूँ, देखते हैं याद आ गया तो वही करवा दूंगा। डिजाइन द सेम क्वेश्चन। कितने आएंगे इस बार? 16 22 है कैट में, 22 22 24 22 22 66 हो गए। 22 थोड़े 66 नहीं है, तो टोटल तो 66 ही आने हैं। हाँ 24 66 आने हैं ना, 24 22 20 नहीं, क्वांट में उसमें आएंगे, DILR पे 20 आते होंगे। ओके, तो इसमें 12 चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए। हाँ 7-8 कर ली मैंने। ओके okay, now we may have some of these questions as well. Let us say I have a क्या, कौन सा सेशन एम कैट में था। मान लेते हैं हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हो, ये क्वेश्चन बन सकता है। हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हो, ये क्वेश्चन बन सकता है। हमें ऐसे रूट चाहिए, ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हो। हमें ऐसे इक्वेशन चाहिए जिसका रूट अल्फा बाय 3 बीटा बाय 3 हो। हमें ऐसा भी रूट हो सकता है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं इसको एक बार नॉर्मल मेथड से करके बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कुछ थोड़ा शॉर्टकट अगर कई बार करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है हमको अल्फा प्लस के चाहिए और बीटा प्लस के चाहिए, या हमें रूट अल्फा माइनस के चाहिए बीटा माइनस के चाहिए। अब 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि मेरी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। हमें इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा है। तो मेरी इक्वेशन ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द रूट्स यानी माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बननी चाहिए अगर ये रूट चाहिए तो। ये कैसे पता? अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि अगर हमें रूट्स पता है तो इक्वेशन ऑफ द रूट बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एस का मतलब ये सम ऑफ द रूट्स, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ मेरी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस हम ले आएंगे बाहर आ जाएगा प्लस सम ऑफ द रूट बनेगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। बट व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? फ्रॉम हियर वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा व्हिच इज नथिंग बट सी बाय ए। अभी ये भी किया था।
इस अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई डाल देते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई डाल देते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स इंटू माइनस बी बाई ए प्लस ये बनेगा सी बाई ए। चलेगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं इक्वेशन में ये साइन बदल दूं तो मेरे रूट्स बदल जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के रूट्स मेरे 2 3 थे। इसका साइन में चेंज कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कर दूं तो इसके रूट्स क्या बन जाएंगे? -2 -3 बन जाएंगे। नहीं आया समझ में? मान लो मैंने कहा कि मेरे रूट्स अल्फा बीटा है, जिसकी इक्वेशन ये, इस मुझे ये बताइए, जैसे या तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन है, उसके रूट्स ये हैं। मैंने कहा उस इक्वेशन, वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स -2 -3 हैं। तो हमने क्या किया? हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द रूट इज -2 -3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। हुआ क्या? देखो साइन चेंज हो गया बीच में, तो रूट्स के साइन चेंज हो गए। ये मैंने जनरलाइज करके दिखाया कि ये अगर मेरी जनरल इक्वेशन है तो अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे रूट्स क्या हो जाएंगे? माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएंगे। ठीक है? ऐसे ही अगर मुझे मान लो ये रूट जो 2 3 थे, मान लो मुझे 4 6 चाहिए होते, तो वापस या तो मैं सारा कुछ करता। उसी तरीके से मान लो मेरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स मेरे अल्फा बीटा, मुझे चाहिए 2 अल्फा 2 बीटा। या तो मैं वापस सॉल्व करूं ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली बात क्या है कि जो मेरा नया रूट है ना, मान लो x, वो होना चाहिए 2 टाइम्स अल्फा, यही बात है। यानी जो अल्फा है वो x/2 है बेसिकली, अल्फा के x/2। x की जगह अपन क्या रख देंगे? x/2, हमारा काम चल जाएगा। x की जगह क्या रखना पड़ेगा? x/2, तो ये बनेगा a x/2 का होल स्क्वायर प्लस b x/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा a x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी एक्स अपॉन 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे 4ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी बीच में अगर मैं 2 कर दूं तो मेरे रूट्स डबल हो जाएंगे। इसका मतलब है मान लो मुझे रूट ये चाहिए, ओरिजिनल इक्वेशन मेरी ये थी, ओरिजिनल इक्वेशन मेरी थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स 2 और 3 थे। मुझे 2 इंटू 2 चाहिए और 2 इंटू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डबल करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 10x प्लस 6। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे रूट्स 4 और 6 आ जाएंगे। ठीक है? अब मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। मैं चाहता हूं मेरे रूट्स बन जाए अल्फा बाई 3 और बीटा बाई 3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा, अल्फा बाई 3 नया रूट है, तो अल्फा की जगह 3x, मतलब अल्फा की जगह 3x, यानी जो x है उसकी जगह मुझे क्या लिखना है? 3x। तो अगर मैं x की जगह 3x रख दूंगा और जो इक्वेशन बनेगी वो जो रूट देगा वो ये रूट देगा। अगर मान लो मुझे चाहिए 3 अल्फा 3 बीटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x की जगह क्या रखना पड़ेगा? तो 3 अल्फा इज इक्वल टू न्यू x, x इज इक्वल टू x बाई 3। तो इसका मतलब मुझे क्या है? x की जगह क्या रखना पड़ेगा? x बाई 3, तो मेरा काम चल जाएगा। अगर मान लो रूट्स अल्फा बीटा है, मुझे चाहिए माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस अल्फा नया x हो गया, तो अल्फा की वैल्यू माइनस x हो गई, x की जगह मुझे क्या रखना है? माइनस x। तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, यही बनेगा जो अपन ने शुरू में सॉल्व किया था माइनस। देखो ये शॉर्टकट है इसका। जो रूट चाहिए, मान लो ओरिजिनल का डबल चाहिए, तो जो नया x है उसको इक्वेट कर दो, हाफ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नया x को 2 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू x/2। मान लो हमें नया रूट आधा चाहिए, तो अल्फा बाई 2 चाहिए, तो अल्फा बाई 2 इज नया वैल्यू, तो नई वैल्यू हो जाएगी डबल, डबल x की जगह 2x कर दो। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? ये सारा इसमें आपको एक्सप्लेनेशन इन्होंने जो मैंने बताया वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड और क्लैरिटी है, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो पूरा का पूरा चीज है। यहां तक बात समझ में आती है? यानी हमारे पास अगर एक इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन निकालना आता है, हमारे पास सॉल्यूशन है तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। नॉट ओनली, और अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशंस हैं, उस सॉल्यूशन में अगर हमें कुछ चेंज करके नया इक्वेशन बनानी है, हम उसको मेथड से भी बना सकते हैं और शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। ठीक? उसके अलावा अगर हमें क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फिफ्थ डिग्री इक्वेशन है, तो हम उसका कोफिशिएंट्स के साथ उसके रूट्स का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, जो भी हमने पीछे सीखा। यहां तक कोई डाउट है किसी को?
नो प्रॉब्लम्स। इसके बाद किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना आता है। इसको हम 12th क्लास में डिफरेंशिएशन से भी करते हैं। क्योंकि वो नहीं आती है तो मैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बताऊंगा, और वो भी नहीं आता तो एक बार अभी डिराइव करके दे दूंगा, फॉर्मूला रट्टा मार लेना, वो डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये तीनों चीजें कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी पायल बताओ। हेलो, हैं कौन सा वाला, कौन सी वाला? हाँ वो अभी आया नहीं है। हाँ वो भी 1 से। और सर जो हमने जब डबल किया था 2 अल्फा 2 बीटा, तो उसमें 4c भी तो हो जाएगा ना, ax² + 2bx + 4c नहीं होगा? अगर हम ये x² - 10x हाँ हाँ ये + 6 को 4c, सॉल्व करेंगे ठीक, तो हाँ वो ये एलसीएम ले लेंगे आएगा। तो 4c आ जाएगा, ठीक है 4c आ जाएगा, ठीक है। और कुछ पायल? वो सर बस वही डाउट। ओके। So this is the question I was saying कि there's a, ये x की पावर 5 है बाय द वे, ठीक है ना। दिस x की पावर 5 इंटू 4x की पावर 4, मतलब ये सुपरस्क्रिप्ट है ये, ठीक है। पता नहीं इसमें मैथ्स है या नहीं है, हैं? चलो दिस इज x की पावर 5, दिस इज 4x की 11 की पावर है। हाँ ये मतलब x की पावर 5 है माइनस 11x की पावर 4 है, कुछ कुछ तो है, प्लस 13 इज इक्वल टू 0 है। ये कह रहा है स्टूडेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम फ्रॉम एन ओल्ड टेक्स्ट बुक, ही सीज एन इक्वेशन व्हिच इज पार्टली विजिबल, he sees x की पावर 4 minus 11x की पावर 4 plus so on till 13 is equal to 0. If he knows that -1 is the root of this equation and all other roots are integers, what is the sum of the squares of the all the roots of this 5th degree equation? ये इक्वेशन है, इसमें 5 सॉल्यूशन आएंगे। कह रहा है जो सॉल्यूशन आएंगे उनके स्क्वायर का सम चाहिए, जिसमें से हमें एक चीज पता है कि इसके एक रूट जो है ना वो -1 है, बाकी हमें इक्वेशन भी नहीं दिख रही है, बाकी हमें इसको कुछ नहीं पता। करो सॉल्व। मैं कह रहा हूँ इक्वेशन होती तो ही नहीं निकलती, यहाँ तो आधी इक्वेशन है। ठीक है, so what do you do? Okay, so there are तो 5 रूट्स बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस ओमेगा। उसका बनेगा -b/- ऑफ, यानी रिजल्ट कितना आना चाहिए, पांचों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा। ये क्या बनेगा, 5 है तो माइनस आएगा c/a। अब ये बोल रहा है कि ये सारे रूट्स इंटीजर्स, यानी प्रोडक्ट होना चाहिए 1 -1 ऐसा कुछ होगा। 13 इज अ, तो ये तो स्प्लिट तो होगा नहीं, इसमें एक वैल्यू तो 13 ही होनी चाहिए, या -13 भी हो सकती है, हमें पता नहीं है।
जो बचे हुए रूट्स हैं -13 मान लो एक, तो बचा हुआ या तो 1 या तो 1 या तो 1 या तो 1, यही हो सकता है। तो लेकिन अगर ये रूट्स होते तो इनका सम -13 + 1 तो क्या आ जाता, +4 -13 -9 आता, लेकिन हमें तो 11 चाहिए। इसका मतलब कुछ पंगा है। क्या पंगा है? उसमें से हमें दिया है वन ऑफ द रूट इज -1, तो अगर एक रूट -1 है तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है या तो -13 नहीं है, और अगर है तो इसमें एक रूट और माइनस होगा, और जब हम इनको सम करेंगे तो -13 आना चाहिए। ये तो 11 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब -13 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि -13 होगा तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, हमें तो चाहिए पॉजिटिव। यानी ये 13 तो प्लस होगा, इसका मतलब हो सकता है कोई और माइनस हो। अब 3 - 1 प्लस -2 हो गया, -2 + 13 11 बन गया। यानी यही रूट होने चाहिए। यानी एक रूट जो है वो अगर 13 है तो बीटा मान लो -1 है, गामा मान लो -1 है, डेल्टा मान लो -1 है, तो ओमेगा मान लो +1 है। यही 5 रूट होने चाहिए। इनका स्क्वायर करना है। हालांकि इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अपन कुछ भी 13 ले लेते कि स्क्वायर करके ऐड करना है, बट समझाने के लिए कि कैसे सेटिंग बिठानी है वो ये आएगा। तो इसका स्क्वायर बनेगा 169 +1 +1 +1 +1। ये एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन है। ऐसे कुछ बनेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। नो, हाँ जी, ऑनलाइन समझ में आया? मुस्कान, पायल? Yes, sir. ओके, Yes, sir. देन लेट्स टेक दिस। मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं मैक्सिमा मिनिमा सिखाता हूं। मान लेते हैं हमारी इक्वेशन x² - 5x + 6 थी। इसकी अब एग्जामिनर जो भी पूछेगा ना वही निकलेगा, ये चिंता मत करना मैक्सिमा पूछा मिनिमम निकल गया, ऐसा नहीं होगा। इसकी मान लो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू निकले क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा यानी मिनिमा निकलेगा। तो इसका मान लो मिनिमा निकालना है। एक तरीका और एक, इसको y मान लो, फंक्शन को y मान लो, dy/dx करो, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये बनेगा 2x - 5। इसको इक्वल टू 0 पुट करो तो x की वैल्यू आ गई 5/2। यानी जब x की वैल्यू 5/2 होगी तो ये फंक्शन क्या देगा, मिनिमा या मैक्सिमा। अब हमें कैसे पता चलेगा मिनिमा या मैक्सिमा? डबल डिफरेंशिएट करो इसको, +2 आएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो क्या मिलता है, मिनिमा। अगर नेगेटिव आता है तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा। यानी जब x की वैल्यू 2.5 होगी तो ये एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू देगा। वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? x की जगह अपन 5/2 पुट करते हैं, तो 5/2 का स्क्वायर -5 × 5/2 + 6, यही बात है। ये बनेगा 25/4 - 25/2 + 6, 4 25 - 50 + 24, यही बनेगा। तो ये बन जाएगा 49 - 50/4। मेरा आंसर आएगा -1/4। इस बार है ये 12th क्लास में एक चीज होती है जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, वहां से आया। ठीक है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n × x की पावर n - 1। वैसे बहुत सारी होती है, याद रट्टा मारना होता है, भूल जाओ, जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है, मैं इसको अलग तरीके से बताऊंगा। मैं अभी तो उनको बता रहा हूँ जो डिफरेंशिएशन करते हैं। तरीका नंबर 1, यानी जब x की वैल्यू 2.5 होगी तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी -1/4। इसका मतलब अपन x में कुछ भी डाल दें, 1 2 4 लाख 10 लाख, -1/4 से ज्यादा आएगी क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम नहीं हो सकती, इसका ही मतलब है। ना ना हो सकता है मिनिमम -1/4 है तो -1/8 भी आ सकती है, +8 भी आ सकती है, 1 लाख भी आ सकती है। वो तो डिपेंड करेगा हमने क्या डाला, लेकिन -4 से नीचे नहीं आ सकती। ये है नॉर्मल मेथड। तरीका नंबर 2, जिसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं, x² - 5x + 6 है। हमें इसको x + a² का फॉर्मेट चाहिए। x + a का होल स्क्वायर का होता है x² + a² + 2ax, ये फॉर्मेट चाहिए। तो बनेगा x² 2ax चाहिए
तो यहाँ ये वाला होगा 2x, तो आप यहाँ लिखते हैं +2, लेकिन यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो इसको -5x है, तो इसको बाई 2 कर देते हैं ताकि ये डिवाइड हो जाए, ताकि ओवरऑल कैंसिल होकर -5x आएगा। तो ये a² है, a² आ गया, +6 दे रखा है, लेकिन अपने को b² चाहिए, लेकिन b की वैल्यू क्या है 2ab, b की वैल्यू ये, इसका भी स्क्वायर चाहिए, जो चूंकि हमने मन से डाल दिया तो यहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा ताकि ये कट जाए। ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? नहीं समझ में आ रहा? हमारी इक्वेशन होती है x + a का होल स्क्वायर होता है x² + 2xa + b², ये होता है एक्सप्रेशन। इसको मुझे ऐसे बनाना है, तो x², 2ab चाहिए, तो 2 तो चाहिए, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड कर दिया, इसको माना 2, इसको माना a, तो ये बनेगा b, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के लिए b² चाहिए, यानी इसका स्क्वायर चाहिए, तो हमने ले लिया, क्योंकि हमने मन से ले लिया तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब अपन इसको देखो, इसको, इसको और इसको, लाल वाले को, ये बन गया मेरा x² -2 5/2x प्लस -5/2 का होल स्क्वायर, ये अलग आ गया, प्लस -25/4, ऐसा कर दूं मैं। इसको देखो, ये बन रहा है x - a का होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन, सो दिस इज x प्लस 24 - 25/4 बनेगा, तो ये बनेगा x - 5/2 का होल स्क्वायर -1/4। अब मुझे ये बताओ, अगर अपन x कितना भी कम डाल दें तो ये स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा और -4 आएगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू खूब बड़ी हो तो x को खूब बड़ा डाल दो, बात बन जाएगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मिनिमम हो, तो कितनी होनी चाहिए मिनिमम वैल्यू इसकी? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, एक बार क्लास में हो सुनिल। हाँ हाँ 5 मिनट। तो जब x की वैल्यू हम 5/2 डाल दें तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, कोई भी नेगेटिव हो उसको भी स्क्वायर करके पॉजिटिव बना देगा। यानी अगर अपन x को छोटा करना चाहेंगे तो -3 -4 डालेंगे, लेकिन ओवरऑल स्क्वायर में इफेक्ट पॉजिटिव का आएगा। तो अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू चाहिए, वो 0 ही हो सकती है। तो 0 करने के लिए कब होएगा 0? 5/2, जो अपन ने डिफरेंशिएट करके यहाँ निकाला था। यहाँ हमें पता लग गया कि भाई जब x की वैल्यू 2.5 होगी तब ये 0 होगा। उसके 0 होने पे आंसर कितना आएगा मिनिमम? इससे कम तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अलावा x कुछ भी डाल दो, मान लो 0 डाल दिया अपन ने, तो वहां +5/4 हो जाएगा, +5/4 -1/4 +4/4 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा आंसर, जो कि -1/4 से ज्यादा है। तो -1/4 क्या है? मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, इससे कम नहीं हो सकता। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। कुछ भी डाल दे इन्फिनिटी, x की वैल्यू तूने 5000 डाल दी, 5000 में से 2.5 घटाएगी तो कितना बचेगा? 4997.5, उसका स्क्वायर करेगी तो कुछ तो बनेगा 16-17 हजार, कितना ही बना ले, लेकिन छोटा नहीं बना सकती -1/4 से। तू सोचे कि मैं तो -5000 डाल दूंगी, कोई बात नहीं, डाल देगी तो क्या हो गया, -5000 -2.5, -5000 2.5 का स्क्वायर करेगी तो प्लस हो जाएगा 25,000 टाइप, तो बढ़ जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यूज का ये मतलब है। ठीक है, अब मान लेते हैं हमें डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है, तो मैं बता देता हूं क्या होएगा। ये तो हमारा मेथड हो गया। मान लेते हैं हमारी इक्वेशन ax² + bx + ca, मैं डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूं बाय द वे। डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा 2ax + b = 0, x की वैल्यू -b/2 है। जब आप x की वैल्यू ये रखोगे ना, तब आपका या तो मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा, काम खत्म, बस इतना याद रखना है। हाँ, जैसे मान लो x² - 5x + 6 है ना, आपको क्या पुट करना है? -b/b की वैल्यू -5/2 × 1, आंसर क्या आ गया? -5/2 आ गया। इतनी मेहनत करके यही सब तो निकाला था आपने। यानी when x = -b/2 at that point of time you will get मिनिमा या मैक्सिमा। वो डिपेंड करेगा मिनिमा या मैक्सिमा, अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमा, a नेगेटिव है तो मैक्सिमा। हाँ जी, हाँ तो ये इक्वेशन ये थी ना, तो ये कर लेते हैं, x² + 5x थी ना, या माइनस थी?
हाँ तो 5/2 ही आएगा, ठीक बात तो है। 5/2 अपन ने 5/2 तो डाला x की वैल्यू, तभी तो है। ठीक है 5/2 अभी तो शुरुआत के भी तो आया हूँ, ब्रेक दे के इतना लंबा। है हाँ, x की जगह 5/2 कर दोगे ना, आंसर आ जाएगा हमेशा। -1/4 आएगा। This is the point on which you will get minima and maxima. That means मान लेते हैं ऐसे, ये x की वैल्यू यहाँ है 2.5, तो ये y की वैल्यू ये आएगी, ये -1/4 है, ये y एक्सिस है ना। जब x की वैल्यू 2.5 होगी तो y की वैल्यू -1/4 होगी। ये पॉइंट है, इसको कह रहा है ग्राफ में, इसका ही मतलब है मिनिमा है, क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ, मैक्सिमा तो इन्फिनिटी ले जा, कितना ऊपर लेके जाना चाहता है। जो क्वेश्चन दिया है उसमें पुट करना है बस। ये क्वेश्चन है ना x² + 5, हाँ x की जगह 5/2 आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ये इक्वेशन है, माइनस ऑफ माइनस करेंगे। अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ, -1/4 लाने का ही फॉर्मूला बता देता हूँ। इसको x को यहाँ पुट कर दो, a इंटू -b/2a का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस b इंटू -b/2a बनेगा, प्लस c बनेगा। इसका स्क्वायर करेंगे, ab² + 4a² बनेगा, a से 1 कट जाएगा, -b²/2a + c बनेगा। एलसीएम ले लेते हैं, 4a बनेगा, तो ये बनेगा b² माइनस ये 2 से 2 जाएगा, -2b² + 4ac, यही बनेगा। तो ये बन जाएगा 4ac - b²/4a। ये या तो मिनिमा वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी। पुट करके देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन x² - 5x + 6 थी। 4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है, माइनस b² यानी -5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 1, यही आना चाहिए। ये बनेगा 24 - 25/4, जिसकी वैल्यू आ गई -1/4, जो आपने निकाला था। ये डायरेक्ट आंसर है। मिनिमा मैक्सिमा का डायरेक्ट आंसर ये है, किस पॉइंट पे आएगा उसका आंसर ये है। बस ये दो चीजें ध्यान रखोगे, आपका मिनिमा मैक्सिमम निकल जाएगा। नहीं आ रहा इसमें, x की वैल्यू 2.5 पुट करनी है, 2/5 का होल स्क्वायर -5 × 2/5, हाँ 5/2 सॉरी, 5/2 का होल स्क्वायर -5 × 5/2 + 6, यही बनेगा 25/4, 25/2 + 6। एलसीएम लेंगे 4, 25 - 50 + 24, यही बनेगा। ऐड करेंगे -50 + 49/4 -1/4। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्कार्टेज रूल। ठीक है, बस एक ही चीज और कराऊंगा, डिस्कार्टेज है। कल क्या है? हाँ तो कल अगला चैप्टर करेंगे। हाँ लास्ट ही एक कर रहे हैं। सैटरडे को आपकी क्लास है क्या? शेड्यूल आ गया? सैटरडे में हूँ नहीं, चलो मैं नहीं। हमारे डिस्कार्टेज रूल पे या तो पैक करने को तैयार हो गई है? आधा घंटा लगेगा बस।
अरे नहीं लगेगा ऐसे तो उसको बोलो 10 मिनट लगेगा सिर्फ। हैं कौन सी थी? उसके पहले भी बैठी थी, मतलब बैकअप में भी थी। कोई नहीं, थोड़ा ऐसा ऐसा कर ले, स्ट्रेस स्ट्रेस कर ले, घूम फिरा हो जाएगा, ठीक क्या है उसमें। चक्कर चुक्कर काटा एक आधा, ऊपर छत पे जा घूमा, हो जाएगा। 4 घंटे पढ़ाई करी, 6 घंटे, फिर क्या थी? अच्छा 6 घंटे, 2 घंटे बैकअप भी लिया होगा। नहीं थी, बस फिर क्या टेंशन है। अच्छा, व्हाट इज डिस्कार्टेज रूल? मैं भी तो आधा घंटा बाद ही आया था देखो, और बीच में भी 10 मिनट के लिए मैं भी चला गया। बस ये आखिरी है ना, खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा फांसी था, इससे स्लो क्या पढ़ाऊंगा मैं? है? वो B3 बाद में पेस पकड़ना पड़ेगा मुझे उनमें। ओके, हाँ, ये डिस्कार्टेज रूल में एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल कराता हूँ, उससे सब हो जाएगा, ठीक है? B3 जितना स्लो मैंने इसमें भी कराया है, लेकिन वो फर्स्ट बुक में। हाँ, अच्छा, वो फिर डम। कहाँ गया डिस्कार्टेज? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इसमें x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 24। मान लो ये मेरा फंक्शन है f ऑफ x यानी इसकी वैल्यू x पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है? कितने कितने रूट्स बनेंगे इसके? 5 रूट। अब हमें इन 5 रूट्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन डिस्कार्टेज रूल हमें एक मेथड देता है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कितने पॉजिटिव रूट हैं, कितने नेगेटिव रूट हैं, कितने रियल और कितने इमेजिनरी, ठीक है? अब अगर मुझे इसमें पॉजिटिव रूट निकालने हैं तो आप पहले देखो इसमें कितनी बार साइन बदल रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव है, मान लो कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है ना, प्लस से माइनस एक चेंज, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, और माइनस से प्लस 4, यानी मैक्सिमम 4 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं इसके। कितनी बार साइन चेंज हुआ? 4 बार, यानी ज्यादा से ज्यादा कितने पॉजिटिव रूट हो सकते हैं? 4। ज्यादा से ज्यादा का मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन कम तो हो सकते हैं। अब इससे कम कितने पॉजिटिव हो सकते हैं? 3, 2, 1 ऐसा, लेकिन 3 नहीं हो सकता। इससे कम या तो 2 होगा और या 0 होगा। हमेशा जो कम जो डिफरेंस है ना, वो 3-3 के डिफरेंस में चलता है। मान लो मैक्सिमम कितने पॉजिटिव हैं? 4, तो यानी इससे कम पॉसिबल है। इससे कम कौन कौन सा हो सकता है? या तो 2 पॉजिटिव रूट, हाँ अभी बताऊंगा, या तो 2 पॉजिटिव रूट या 0 पॉजिटिव रूट। मान लेते हैं यहां पे एक बार प्लस होता, 1 मिनट के लिए मान लो प्लस होता, तो कितनी बार साइन चेंज हुआ मेरा? 3 बार। तो पॉजिटिव रूट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। देखिए यहां से आया कोई चेंज नहीं है, यहां से आया एक चेंज नहीं, यहां भी चेंज, यहां से आया एक चेंज, उत्तरे की, फिर 4 कैसे थे? पहले 2 ही चेंज है ना। तो अगर 2 चेंज है तो मैक्सिमम पॉजिटिव कितने होंगे? या तो 2 या 0। मैं चाहता हूं 3 चेंज करना, रुक जाए 1 मिनट। कहाँ करूं? यहां पे कर दूं? ये है मान ले, तो यहां से आया एक चेंज, नो चेंज, 2 चेंज, 3 चेंज। हाउ मेनी चेंजेस? 3। तो मैक्सिमम पॉजिटिव कितने रूट्स होंगे? तो इससे कम भी होने चाहिए। इससे कम कितने होंगे? 2-2 का गैप आएगा बस। क्यों आएगा अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उससे कम तो हो सकता है। उससे कम कितना होगा? 2-2 के गैप पे होगा। उससे कम कितना होगा? यानी अगर 5 बार चेंज हो रहा होता, मान लेते हैं अपने 5 बार चेंज हो रहा है, तो मैक्सिमम 5 पॉजिटिव रूट, या फिर 3 पॉजिटिव या 1 पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अगर मैक्सिमम चेंज मान ले 4 हो रहा था, वो तो कर ही लिया। 3 हो रहा था तो या तो 3 या 1। अगर मैक्सिमम 2 हो रहा तो मैक्सिमम 2 या 0। फिलहाल जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये था, यहां से एक चेंज, यहां से 2 चेंज, यहां से 3 चेंज, 4 चेंज, यानी पॉजिटिव रूट या तो 4 होगा या 2 होगा या 0 होगा। इसका मतलब ये बात क्लियर? कोई डाउट है इसमें किसी भी प्रकार का? अब अगर हमें निकालना है नेगेटिव रूट,
क्या निकालना है? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? f ऑफ माइनस एक्स लेना पड़ेगा, यानी x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? तो ये बनेगा माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस 28x प्लस 24। ये समझ में आ रहा है? x की जगह अपन ने क्या पुट किया? माइनस। x की जगह क्या पुट किया? कितनी बार चेंज हुआ? यानी मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? एक। मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? 1। तो अगर 3 बार बदलाव होता, 3 बार होता, तो आप क्या बोलते हैं? मैक्सिमम कितने? 3 या फिर 1। अगर ये 2 बार चेंज होता तो क्या बोलते हैं? मैक्सिमम नेगेटिव 2 या 0। अगर ये 4 बार चेंज होता तो मैक्सिमम 4 या 2 या 0। अगर ये 5 बार चेंज होता तो या तो 5 नेगेटिव या 3 नेगेटिव या 1 नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है? फिलहाल हमारे कितने चेंज है? 1 नेगेटिव, तो इससे तो कम हो ही नहीं सकता, यानी 1 तो पक्का नेगेटिव रूट है ही। अब 3 से 2 कम होने चाहिए ना, 1 है तो उससे 2 कम, -1। -1 का तो मतलब या तो रूट होगा या नहीं होगा। 1 तो होगा ही होगा इसका मतलब। अब टोटल कितने रूट बनने चाहिए? 5। तो अगर 4 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है तो काम खत्म, 5 रूट हो गए। लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है कि 4 नेगेटिव है, ये तो मैक्सिमम 4 है ना। तो क्या हो सकता है? 2 नेगेटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो 2 रूट बच गए। वो क्या होंगे? अभी मानते हैं बेटा, अभी कर तो ले। 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो इमेजिनरी कितने होने चाहिए? 2। हम 2 इमेजिनरी पता क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो मैंने कहा था अगर इमेजिनरी रूट हुआ तो वो कॉन्जुगेट पेयर में होगा। तो जब एक इमेजिनरी तो कर नहीं सकते, मान लो आपने कहा 4 5 से कम, 3 मान लिया आपने, 3 ये मान लिया, 1 ये मान लिया, तो 4 हो गए, तो इमेजिनरी 1 रूट होना चाहिए। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, टेक्निकली तो ये पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए 2-2 का डिफरेंस। आप कह रहे हो ना 2-2 का क्यों डिफरेंस? क्योंकि जो 2 डिफरेंस है वो कहां जाएगा? वो इमेजिनरी रूट में जाएगा, और इमेजिनरी रूट हमेशा जोड़े में आता है, इसलिए डिफरेंस हमें 2-2 का लेना है। इसलिए 3 जो हम सोच रहे हैं ये नहीं पॉसिबल है। रुक जा, ये 5 हो गए रूट। अब या तो 0 पॉजिटिव रूट, ये 0 मतलब पॉजिटिव रूट नहीं हो, 0 पॉजिटिव, हाँ 0 पॉजिटिव रूट का मतलब देयर इज नो रूट विच इज पॉजिटिव। भाई व्हाट इज दिस 4? इट मींस देयर आर 4 रूट्स which are positive. This means there are 2 roots which are positive. This means there are no roots which are positive. हाँ, क्यों जी? तो ये फिफ्थ डिग्री इक्वेशन नहीं बनता ना बेटा जी, तो 4th डिग्री होता, फिर इसको इक्वल टू 0 मान के उसको हटाना पड़ता, तो 4th डिग्री इक्वेशन है ना। डिग्री चेंज हो जाएगी, फिर डिग्री बचेगा ही नहीं, फिर डिस्कार्टेज में फिर 5 चेंज आएगा ही नहीं, तेरे को एक 0 हटाना ही पड़ेगा x तो। हाँ, तो इसका मतलब अगर सॉल्यूशन है तो 0 पुट करने पे LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 पुट करेगी तो क्या आ रहा है? fx की वैल्यू क्या आ रही है? इज इट ए सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन? ना होता तो फिर ये x कॉमन निकाल के 4 डिग्री इक्वेशन बना लेते हैं इसको, फिर क्यों 5 डिग्री में फंसे रहते हैं? ठीक है। अब अगर कोई भी रूट पॉजिटिव नहीं है और एक रूट नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है? 4 रूट इमेजिनरी है। इमेजिनरी 4 तो हो सकते हैं ना, 2 पेयर, इसलिए 2-2 का डिफरेंस चलता है। तो अगर डिस्कार्टेज रूल से हम ये बता सकते हैं कि पॉसिबली कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं, पॉसिबली, गारंटीड नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है या तो 4 पॉजिटिव होगा 1 नेगेटिव होगा, 0 इमेजिनरी होगा, या 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 इमेजिनरी, या 0 पॉजिटिव 1 नेगेटिव या 4 इमेजिनरी। ये बता, ये डिस्कार्टेज रूल है, बस इतना ही है।
एफ ऑफ एक्स को देखना कितनी बार बदला, जितनी बार बदला उतने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट। एफ ऑफ माइनस एक्स को देखा, जितनी बार बदला उतने मैक्सिमम नेगेटिव रूट। उसके बाद अब वो सारी जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम मान के इसकी सारी, इसमें तो एक आ गया तो काम चल गया, लेकिन मान लेते हैं 3 आ जाता, तो इसका मतलब 2 और 3 होता, तो 0 मान लो ये आता, एक ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, नेगेटिव मान लेते हैं 3 आ जाता, ठीक है, तो ये 2 आ जाता मान लो, तो इमेजिनरी 0 हो जाता, ये 0 हो सकता था, ये 3 नेगेटिव हो सकता था, ये 2 इमेजिनरी हो सकता था। समझ में आ रहा है? ये भी हो सकता था, ये 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 इमेजिनरी, ये भी हो सकता है 2 मतलब 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 0 इमेजिनरी, ये सारी पॉसिबिलिटीज बनती। समझ में आ रहा है? इसको एक बार 2 माना 0, हाँ 0 1 4 हो सकता है, ये 0 है, ये 1 है और ये 4 है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी। तो ये सारी 0 3 2 है ना लेफ्ट साइड में, नहीं अलग क्वेश्चन है ना ये, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 3 मैक्सिमम नेगेटिव है जस्ट इन केस, क्योंकि यहाँ तो 4 बनेगा ही नहीं, क्योंकि 5 डिग्री इक्वेशन है। मान लो एफ ऑफ एक्स में 2 चेंज आए, एफ ऑफ माइनस एक्स में 3 चेंज आए, तो क्या केसेस बनेंगे? 2 चेंज यानी 2 मैक्सिमम पॉजिटिव 3 नेगेटिव 0 इमेजिनरी, या 0 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 2 इमेजिनरी, या 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 इमेजिनरी, 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 0 इमेजिनरी, 0 पॉजिटिव, मतलब इसको थोड़ा बेटर बना सकता था मैं पहले, पता नहीं ये मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं कि इसके कितने मैक्सिमम नेगेटिव है, कितने मैक्सिमम पॉजिटिव है, ये बताया जा सकता है। ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इतने ही नेगेटिव है इतने ही पॉजिटिव है, ये नहीं बता सकते। क्वेश्चन ये रहा, what can be concluded about the roots on the basis of Descartes rule of sign? ये क्वेश्चन है आपकी किताब के अंदर, एक एग्जाम्पल है, उसने पूछा है, एग्जाम्पल नंबर 2.26 बोलता है, what can be concluded about the roots of x cube minus 7x plus 6 is equal to 0 using Descartes rule? Descartes rule को इस्तेमाल करके इसके बारे में क्या बताया जा सकता है? तो मान लेते हैं ये मेरा फंक्शन f of x is equal to x cube minus 7x plus 6 है, तो डिस्कार्टेज रूल के हिसाब से 1 चेंज 2 चेंज, यानी मैक्सिमम 2 पॉजिटिव हो सकता है या 0 भी हो सकता है। अब नेगेटिव रूट निकालने के लिए इसको f of माइनस एक्स लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 6, 1 चेंज आएगा, इसका मतलब 1 नेगेटिव रूट है, यानी 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, इमेजिनरी रूट 0 हो जाएगा इस केस में, या फिर 0 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 इमेजिनरी, यही पॉसिबिलिटीज है, यही आंसर है। नहीं वो तो एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स मान लिया मैंने, इस एक्सप्रेशन को निकाल लिया बस मैंने। डिस्कार्टेज रूल के हिसाब से या तो 2 पॉजिटिव होगा 1 नेगेटिव 0 इमेजिनरी होगा, या 0 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 इमेजिनरी, यही 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी रियल रूट्स दिस इक्वेशन हैज? कौन सा इक्वेशन? x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये पूछ रहा है इसके कितने रियल रूट्स हैं। अब रियल रूट्स तो देखते हैं, कुछ निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 20, तो सबसे पहले इसको एफ एफ एक्स मानते हैं, पॉजिटिव रूट्स निकालते हैं, यहां से यहां 1 चेंज 2 चेंज नो चेंज 3 चेंज, ये मैक्सिमम 3 पॉजिटिव है, यानी 3 पॉजिटिव या 1 पॉजिटिव, यही बनेगा। इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से यहां 1 चेंज, यानी नेगेटिव रूट कितना है 1, यानी 4 है, तो इमेजिनरी रूट इस केस में बनेगा 0, इस केस में 1 नेगेटिव 2 इमेजिनरी, 4 हो गए। अब क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी रियल रूट्स आर देयर। अगर
अगर ये वाली सिचुएशन है तो 4 रूट्स हैं रियल, और अगर ये वाली सिचुएशन है तो 2 रूट्स हैं रियल। यानी कि क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं? करना पड़ेगा डिटरमाइन। सॉल्व करो बैठ के अब इसको, अगला सवाल ये है। अब आपने कहा था ना सॉल्व कैसे होगा, वो करा रहा हूं। अब इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एक नेगेटिव रूट है, ये तो कंफर्म है। लेट अस डू ट्रायल एंड एरर। द फर्स्ट थिंग इज डू ट्रायल एंड एरर। 0 तो होगा नहीं क्योंकि वो कॉमन हो जाता है। जब भी ट्रायल एंड एरर करो, ट्राई 1, ट्राई -1, ट्राई 2, ट्राई -2, ट्राई 3, ट्राई -3। इसमें हो गया तो ठीक है, नहीं छोड़ देना। ज्यादा से ज्यादा अगर फ्रैक्शन में ट्राई करना है तो हाफ, -हाफ, 1/3 + 1/3। इतने में पा गया तो पा गया, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो पहला इक्वेशन हमें निकालना है 1 पुट करके, ठीक है। अगर x का 1 सॉल्यूशन होगा तो LHS = RHS होना चाहिए। लेट अस अज्यूम x = 1। हेलो, हाँ ठीक है जी, नमस्कार सर। शनिवार में ना पानीपत हूँ। थर्सडे बैठ सकते हैं नहीं? ठीक। So what do we have? L8 LHS = RHS। इसका मतलब किस्मत अच्छी थी, x = -1 इज अ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है x⁴ - 4x³, ये लिख रहा हूं समझाने के लिए, पेपर में नहीं करना है सब। इसकी वैल्यू x - 1 इंटू एक थर्ड डिग्री इक्वेशन बनेगी, इज इक्वल टू 0। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, तभी x = 1 सॉल्यूशन होगा। कैसे? जैसे अपन पहले करते थे x - 2 इंटू x - 3 = 0, तभी तो बोलते थे x = 2 तो यहाँ पे x = 1 सॉल्यूशन है। यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको x - 1 इंटू समथिंग = 0 कर सकते हैं, तभी x - 1 = 0, x = 1 आ रहा है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है अब चूंकि अपने को ब्रैकेट निकालना है थर्ड डिग्री को, इस पूरे को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो डिवाइड कैसे करेंगे इसको? ऐसे करेंगे, x⁴ - 4x³ + 3x² + 2x - 6 को डिवाइड करेंगे x माइनस। तो इसका तरीका होता है, सबसे पहले वाली जो वैल्यू होती है ना, दिस वैल्यू इंटू दिस आंसर मस्ट बी x⁴। तो यहां मैं क्या लिखूं? तो x इंटू x³ कितना बनेगा? x। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा? माइनस, फिर इसको माइनस करते हैं, तो ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, तो ये कट जाएगा, तो ये -3x³ बचेगा, + 3x² बचेगा, + 2x - 6। ये समझ में आ रहा है यहां तक? अगला स्टेप में यहां क्या लिखूं ताकि ये सेम बन जाए? हाँ दीपक, -3x², क्योंकि x³ चाहिए अपने को, तो x इंटू -3x² बनेगा -3x³, -1 इंटू ये बन जाएगा +3x²। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बच गया? 2x - 6। अब यहाँ क्या लिखूं? +2, तो ये बनेगा 2x, ये क्या बनेगा? -2, तो ये कट जाएगा, ये प्लस बनेगा तो बनेगा -4। ये क्या है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। कहाँ पे? यहाँ पे रुक जा है? ओ, 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 अच्छा, ऊपर इसमें पुट करना है भाई, मतलब दिस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, पहले बताना था ना। मेरे को नहीं है, बाकियों को दर्द ज्यादा है जो जाना चाह रहे हैं। रुको अभी से करके भेजता हूँ, चिंता ना करो। अब ध्यान से देखो, देखो गलती हो गई ना, अब टाइम वेस्ट हो गया। अब अपने को इसमें करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है। तो ओरिजिनल वाली ये नहीं है, ओरिजिनल वाली चेक नहीं है, देख नहीं, 1 पुट किया माइनस, अच्छा नीचे वाली, ओके, तो x = 1 ही सॉल्यूशन नहीं है भाई साहब, वाह क्या बात है।
मैं तो खुश हो गया, कितनी अच्छी किस्मत है, 1 डालते ही निकल गया। तो भैया 1 तो नहीं आ रहा है, इसमें डालना था, ये ओरिजिनल है, ये एफ ऑफ -7 की वैल्यू है, हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में। ठीक है, 1 करेंगे तो 1 -4 आ रहा है, 1 -4 + 3 + 2 -6, तो 10 बन गया। ये तो बन नहीं रहा, एक्स की वैल्यू 1 तो नहीं बनेगा, एक्स की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो ये बनेगा 1 + 4 + 3 -2 -6, तो ये आ रहा है क्या 8, कहां से आ रहा है 8 आ रहा है 0। अब तो मैं डबल श्योर हो रहा हूं, इसका मतलब है लास्ट स्टेप मेरा होगा x + 1 * समथिंग इज इक्वल टू x की पावर 4 - 4x³ + 3x² + 2x, ये डिवाइड करेंगे। हाँ पूछ लो साथ साथ, बता क्या कह रही है। तभी तो सॉल्यूशन x = -1 आएगा। इसका मतलब है हमें x की पावर 4 - 4x³ + 3x² + 2x - 6 को डिवाइड करेंगे हम, ये आता है ना, अब डिवाइड करना आ गया ना, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखते हैं। आंसर क्या आ रहा है इसके बीच का, या कर दूं डिवाइड कोई, इसका आंसर आ रहा है x³ हाँ ठीक है। तो 4th डिग्री इक्वेशन में से एक रूट निकाल लिया हमने, किस में कन्वर्ट कर लिया 3rd डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है 3rd डिग्री को, फिर ट्रायल एंड एरर करेंगे। ठीक है, इसी में इसमें अब इसमें करेंगे ना वो नहीं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, x की वैल्यू 1 -1 2 वो डाल के। तो अब मेरा जो फंक्शन है वो ये हो गया x³ - 5x² + 8x - 6। अगर अपन 1 डालते हैं तो 1 - 5 + 8 - 6, कुछ बन रही है बात, नहीं बन रही है। इसको -1 डाल रहे हैं तो -1 - 5 + 8 - 6, नहीं बन रही है। 1 डालेंगे तो माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, नहीं बन रही ना, नहीं तो -1 के भी नहीं। तो हम 2 डाल के देख लेते हैं, 8 - 4 5 = 20 + 16 - 6 बन रहा है कुछ, 24 26 नहीं बन रही है, -2 से, अच्छा 2 से रह गए। अब -2 पुट करते हैं, -8 -20 -16 -6, ये तो बिल्कुल ही जा रहा, कर लो 3 पुट करते हैं, 1 मिनट। 27 - 9 5 = 45 + 8 3 = 24 - 6, कुछ बन रही है बात है। 7 4 11 11 लग तो रही है, फीलिंग तो आ रही है, बन गई, आ गया ना। हाँ तो ये बने 7 4 11 51 आ गया, ये -15, मजा आ गया। एक्सप्रेशन क्या बन गया, नहीं यहाँ तो -3 पुट करते, फिर हाफ पुट करते, फिर -हाफ पुट करते। अब इसका मतलब ये है कि जो x³ - 5x² + 8x + -6, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x - 3 into some quadratic equation. So this quadratic equation can be formed by taking x³ - 5x² + 8x - 6 divided by x - you'll get some quadratic equation, क्या बन रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि this equation can be written as this into x - 3, which original equation can be written as into x -1 था +1 था, x + 1, ये अभी तक की इक्वेशन होगी। अब इसको स्प्लिट करेंगे हम, ठीक है। ये आसान है या नहीं है पता नहीं है, सॉल्व होएगा ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, प्रोडक्ट -2 सम +2, ये नहीं होएगा, ये इमेजिनरी रूट होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा b² -4 × 1 × 2, तो ये बनेगा 4 - 8, नेगेटिव आ गया यानी इमेजिनरी रूट, यानी इसके कितने इमेजिनरी रूट बनेंगे 2, तो 2 इमेजिनरी रूट हो गए, एक यहाँ पे 3 आएगा जो कि पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे -1 आ गया जो कि नेगेटिव हो गया, यानी 1 1 2 की कंडीशन बन रही है जो हमने शुरू में निकाला, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव
टू इमेजिनरी। तो पॉजिटिव रूट हमारा यहाँ पे है 3, नेगेटिव रूट है क्या है, कहाँ पूछा क्या है तो निकल ही जाएगा, बट इसने पूछा कितने रियल रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स हैं। इमेजिनरी रूट निकालना है तो निकल जाएगा ना, -b यानी -(-2) प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac यानी -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा 4 + -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा 2 ± आयोटा, यानी एक बनेगा 2 + आयोटा और दूसरा रूट बनेगा 2 - आयोटा। तो 2 रूट ये हो गए और 2 रूट ये हो गए, ये 4 रूट हैं इसके। ये 4th डिग्री इक्वेशन हमने सॉल्व करी है, और कोई तरीका नहीं है, हमें ट्रायल एंड एरर से जाना। आयोटा अंडर रूट ऑफ -4, अंडर रूट ऑफ -4, अंडर रूट ऑफ -4 को अपन लिख सकते हैं -1 × 4, 2 × 2, तो इसमें से 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा -i, अंडर रूट ऑफ -1, तो इसको हम लिखते हैं 2 आयोटा, वहां से आएगा। क्लियर है सभी को? दिस टेक्स केयर ऑफ योर दिस चैप्टर।